our chairperson, Mrs. Pragya Singh ma'am, to kindly come forward on the stage and take her seat. Now, I invite our speaker, Mrs. Pooja Kumar ma'am, to join us online. To express our gratitude, I invite Mrs. Anamika Chaurasia ma'am to present a life plan to our chairperson. Thank you so much, ma'am. Now I request Mrs. Pragya Singh ma'am to kindly introduce our esteemed speaker. Over to you, ma'am. Thank you, Pragati. Good afternoon, one and all present here. I am Pragya Singh, Associate Professor in CNIPS. I am going to introduce our keynote speakers, Mrs. Pooja Kumar Ma'am. Ma'am is a founder and director of Innov Intellect LLP, established in 2017. A registered patent agent and startup facilitator under the Government of India. She has played a pivotal role in shaping the intellectual property right landscape. With over 18 years of experience, she has successfully filed with over than 2000 patents, maintaining a 100% success rate. Her expectational contributions to field earned her a Bharat Gaurav Rath Woman Entrepreneur Award 2024, a gold medalist in microbial and food technology from Punjabi University, Patiala. Ma'am has qualified for the GATE exam 2008 and Indian Patent Agent exam in 2010. Over the year, she has conducted over 500 IPR awareness program and has been actively men- mentoring startup in life science, biotechnology, pharma and engineering. Her expertise has also recognized internationally with invitation as a panelist for an IP radio station in Nigeria and as a mentor for a students under JIIPCC South Africa. Her dedication for IPR education and innovation has led to several prestigious recognition, including the Senior Woman Entrepreneur Awards by JECL Foundation, the Excellence in IPR Services Award by LOQMAN, and the Top Woman Consultant Recognition 2020. She has been instrumental in establishing multiple IPR cells in universities and institutes across India and has collaborated with recognitions like Gujarat Innovation Council, MIET, and IIM Kasipur. With her vast expertise and unwavering commitment to fostering innovation, Ma'am continue to be a highly respected leader in field of intellectual property right. We are honored to have with us today, ma'am. Welcome you, ma'am. This is over to you. थैंक यू सर। मैं कुछ पीपीटीज है आपकी नर्सिंग वाली से रिलेटेड, तो क्या करूं, शेयर कैसे करूं? आप मुझे शेयर पर जरा राइट देना। एक मिनट रुको, शेयर स्क्रीन करूं क्या? शेयर शेयर में क्या डालूं मैं? इसमें ऑप्शन बहुत सारे आ रहे हैं। शेयर स्क्रीन, अभी स्क्रीन शेयर है सर, देखिए।
अभी देखिए सर, अभी वहां क्या दिख रहा है? चलो ठीक है, मैं ऐसे ही स्टार्ट करती हूँ फिर। शेयर स्क्रीन, या तो मैं आपको करूँ, एक बार भेजूं? रुको एक मिनट, मैं आपके इसी जिस पे लिंक आया था ना उसी पे मैं शेयर कर रही हूँ, रुको। कर दिया मैंने। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस वाला था ना, जो ग्लोबल समिट। हाँ देखिए। हम्म मिल गया क्या आपको? ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग, सॉरी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड माई सेल्फ पूजा कुमार, एंड आई एम वर्किंग विद लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज लाइक शुभ भारती के लिए मैंने काम किया, SRSU के लिए किया, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस के लिए हम काम करते हैं, एंड फॉर प्रोटेक्शन देयर पेटेंट डिजाइन एंड कॉपीराइट। जैसे कि यू पीपल आर फ्रॉम नर्सिंग डिपार्टमेंट, और नर्सिंग में भी बहुत सारी इनोवेशंस होती हैं, जैसे हम जिसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जैसे हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग सिस्टम होता है, ब्रेस्ट फीडिंग पंप्स हो गए आपके, ठीक है। आपने नर्सिंग ब्रा बनाई है, मेटर्निटी ब्रा बनाई, मेटर्निटी ब्रास होगी, मेटर्निटी गारमेंट्स हो गए आपके। तो कई बार क्वेश्चन उठता है कि मैम, हम अगर हमने कोई मेटर्निटी ब्रा बनाई है या मेटर्निटी गाउन हमने डेवलप किया, उसका डिजाइन यूनिक है, और आपने भी देखा होगा उसमें भी काफी सारे इनोवेटिव डिजाइन होते हैं, कोई यहाँ पे जिप लगा रहा है, कोई फ्लाई, कोई यहाँ पे आपकी वो क्या कहते हैं, मतलब उसके जो डिजाइन है वो काफी यूनिक होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम पेटेंट नहीं कराएंगे, हम उसको डिजाइन में प्रोटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक इनोवेटर जैसे दीप्ति मैम के, हमने बहुत सारे आइडियाज को प्रोटेक्ट किया, उनके पेटेंट भी फाइल किए, उनके डिजाइन भी फाइल किए। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो रिसर्च आप लोग कर रहे हैं उसी में से आपके पेटेंट और डिजाइन और कॉपीराइट फाइल होते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि हम पेटेंट कराएं या डिजाइन कराएं या कॉपीराइट कराएं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डिजाइन किसका होता है, पेटेंट किसका होता है और कॉपीराइट किसका होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपका जो भी आप क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो भी आपके पास आइडियाज आ कि मैम मेरे पास ये आइडिया है और इसको मुझे प्रोटेक्ट करना है, उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जरूर प्रोटेक्ट करते हैं। सो वी हैव पेटेंट, डिजाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड ज्योग्राफी इंडिकेशन एंड ट्रेड सीक्रेट। तो ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो हम प्रोटेक्ट करते हैं। सर अभी स्लाइड लगाई नहीं ना आपने? हो रही है, डिस्प्ले हो रही है, या मैं अपनी PPT खोलूं? तब तक मैंने, हाँ किया, तब आप, हाँ जब तक शेयर स्क्रीन आपकी हुई नहीं है। ओके। तो टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, हाँ वहां आ गया है। तो मैं अपनी बंद कर देती हूँ। हम्म सो टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट करो सर, नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट। सो दिस इज एन एग्जांपल, नेक्स्ट। हाँ, ये पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और डिजाइन। आप देखो सिंगल प्रोडक्ट जो भी आप आपके यहाँ पे मेडिकल में, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड करो। हाँ, ये आप यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट देख रहे हो, जो ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स है, ठीक है। तो अगर ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स का मुझे क्या करना है, अगर टैबलेट आप बना रहे हो उसका फॉर्मुलेशन का आप पेटेंट करेंगे। जो नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे, निशा रोई करके, हर्ब्स करके है, वो आप ट्रेडमार्क में फाइल करेंगे। और इसका बॉटल का डिजाइन आप इंडस्ट्रियल डिजाइन में प्रोटेक्ट करेंगे। और फॉर्मुलेशन का पेटेंट होगा। जो कंटेंट आप देखते हैं, जो भी दवाई के डब्बे के ऊपर लिखा है और जो उसकी पैकेजिंग है, लीफलेट है, जो भी मैनुअल आपको मिलता है, आप उसका कॉपीराइट प्रोटेक्ट करते हैं। अब इनके राइट जो होते हैं, ट्रेडमार्क आपको 10 ईयर्स के लिए दिया जाता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन 10 ईयर्स के लिए, पेटेंट आपको 20 साल के लिए दिया जाता है, और कॉपीराइट आपको एज ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स। ये आपको राइट्स दिए जाते हैं। ये मतलब लीगल राइट्स हैं कि भाई ये डब्बा जो है या ये टैबलेट जो है ये मैंने डेवलप किया है, ये फॉर्मुलेशन जो है वो मेरी है, इसी का मुझे उसका अधिकार चाहिए, उसके लिए हम ये रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। नेक्स्ट। व्हाट इज ए पेटेंट? इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पेटेंट ऑफिस की तरफ से एक सर्टिफिकेट होता है जो गवर्नमेंट आपको देती है, ताकि आपको राइट मिल जाए, अधिकार मिल जाए कि कोई मेरी बिना परमिशन के मेरे इन्वेंशन को यूज नहीं करेगा। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल हमने छोटे बेबीज के लिए पिलो डेवलप किया, ठीक है।
तो जैसे आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है तो उसको जो पिलो हम यूज करते हैं, जैसे हमारे जो पुराने दादी माँ के नुस्खे हैं कि उसमें कई लोग सरसों के दाने यूज करते हैं कि आपके जो बच्चे का सर है वो गोल रहे। ठीक है, कई लोग ओवल शेप के हाफ सी सेक्शन के पिलोज यूज करते हैं ताकि बच्चे का सर टेढ़ा ना हो, बड़ा ना हो, जो भी है। तो आप ये देखो, अगर मैं एक बच्चे के पिलो की बात करूं, बेबी पिलोज की, तो उस बेबी पिलोज में भी बहुत सारे डिजाइन हैं, बहुत सारे इनोवेशंस हैं। उनका हम क्या करते हैं, हम उनका पेटेंट नहीं कराएंगे, हम उनको डिजाइन में प्रोटेक्ट करेंगे। पेटेंट के लिए चाहिए टेक्नोलॉजी। जहां आप टेक्नोलॉजी की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आपने एक आईओटी बेस्ड डिवाइस बनाया जो आप अपने बच्चों को मॉनिटर करेंगे। सपोज हम माएँ सारी ऑफिस में जॉब कर रही हैं, ठीक है, बच्चों को आपने घर पे रखा है और बच्चे को लोग क्रच में छोड़ते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता हमारा बच्चा वहां क्या कर रहा है। ठीक है, कोई भी अगर कोई गलत एक्टिविटी उसके साथ हो रही है या बच्चा परेशान है, बच्चा रो रहा है, तो उसको सबको मॉनिटर करने के लिए आप अपने मोबाइल पे भी कैमरा लगा सकते हैं। ठीक है, घर पे भी कैमरा लगा हुआ है, तो आप सारा उसका वेब कैम के थ्रू अपना सारा मॉनिटर कर रहे हैं। तो जिसे हम बोलते हैं आईओटी बेस्ड डिवाइसेस। ठीक है, अगर आपने एक वेरिएबल बैंड बच्चे के हाथ में लगा दिया तो उससे आप बच्चे की सारी इंफॉर्मेशन आप पता कर सकते हैं। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ये बात करती हूँ मैं इन्फेंट बेबीज की, जो छोटे बच्चे होते हैं, कई बार वो बहुत रो रहे हैं या बहुत हाथ पैर चला रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, बट उसका एक इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पे आ रहा है, आपको एक इंटीमेशन मिल रहा है कि बच्चे में कुछ हलचल हो रही है। तो वो वेरिएबल डिवाइस के बारे में। और दूसरा एक बहुत अच्छा एक आइडिया आया था, किसी एक मैडम के दिमाग में, नर्सिंग से ही था, कि मैम कि जो हमारी लोरियां होती हैं, हम जनरली जो बच्चे होते हैं अपनी माँ की आवाज को बड़ा अट्रैक्ट करते हैं, है ना, आपने भी देखा होगा। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम पिलो में वो बच्चों की लोरियां लगा दें। ठीक है, और सेंसर्स भी लगा दें, जैसे ही बच्चा रोए वो लोरियां अपने आप चालू हो जाए, क्राइंग जैसे साउंड सेंसर लगाएंगे, जैसे ही उसको लगेगा बच्चा रो रहा है, ठीक है, तो वो जो लोरियां हैं वो उसके पिलो से स्टार्ट हो जाएंगी। म्यूजिक सिस्टम, पिलो विद म्यूजिक सिस्टम था, और वो उसमें जो रिकॉर्ड था वो मम्मी की आवाज में लोरियां रिकॉर्डेड होंगी। तो उन्होंने कहा मैम इसका मुझे पेटेंट करना है। तो यस, तो ऐसी चीजों का हम पेटेंट कर सकते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ओके, पेटेंट राइट इन्वेंटर को दिया जाता है। जो भी आप आइडियाज लेके आते हैं हम उनका पेटेंट फाइल कर, और उसके बाद आप उनको सेल आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने पिलो का आपके दिमाग में आइडिया आया, या फिर जो बेल्ट हम लोग सीजेरियन बेल्ट हम लगाते हैं सीजेरियन के बाद, ठीक है, आपने कोई बेल्ट लगाई जिससे आप ये क्लेम कर रहे हैं कि इससे मोटापा नहीं बढ़ेगा, आपका पेट नहीं निकलेगा, या फिर जो मेरी बेल्ट है उसमें एलोवेरा जेल वगैरह जो आपके टांकों को जो भी स्टिचेस है उसको एक सूदिंग इफेक्ट देगा, ठीक है, उसमें कोई एलर्जीज नहीं होगी। तो आप ऐसे सीजेरियन बेल्ट, मेटर्निटी बेल्ट, ठीक है, ये सब चीजें क्लेम करके भी हम उसका पेटेंट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, पेटेंट करने के लिए सबसे पहले नॉवेल्टी होनी चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा आजकल कितने सारे सैनिटरी पैड मार्केट में है। ठीक है, मामा अर्थ ने भी सैनिटरी पैड बना दिया, बच्चों के डायपर्स में भी आप देखो, पैम्पर्स है, हगीज है, बहुत सारे हैं। ठीक है, ग्रीन डायपर्स, इको फ्रेंडली डायपर्स मार्केट में आने लगे हैं, बैम्बू के मार्केट में डायपर्स आने लगे हैं। ठीक है, और कई जगह पैम्पर में आपने देखा होगा, पैम्पर में वो लोग क्या करते हैं, येलो कलर का स्ट्रिप या ब्लू कलर का स्ट्रिप लगाते हैं, जैसे ही आपका वो भर जाएगा तो आपको उसका कलर चेंज हो जाता है उस स्ट्रिप का। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी जो हम डायपर्स में यूज कर रहे हैं इसका हम पेटेंट कर सकते हैं। तो जब हम पेटेंट फाइल करेंगे डायपर से रिलेटेड, तो हम लिखेंगे कि पहले ऐसे कोई डायपर नहीं है जो मार्केट में ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं, पीएच इंडिकेटर नहीं है, या यूरिन फुल इंडिकेटर के बारे में नहीं बता रहा। ठीक है, तो वो हमारी नॉवेल्टी होगी कि अभी तक किसी ने ऐसा डायपर बनाया नहीं, किसी ने सोचा नहीं। सेकेंड, जो सैनिटरी पैड का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, लोग उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं और पॉल्यूशन कॉज करता है, लोग एनिमल्स उसको उठा के ले जाते हैं, डायपर्स के साथ भी है। तो हमने इंसिनेटेड डिवाइस बनाई है जो कि उसको आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं, जिससे कि पॉल्यूशन नहीं होगा, और वो आप उसको अपने हॉस्पिटल के बाहर में वो डिवाइस को लगा सकते हैं। ठीक है, तो इंसिनेटेड डिवाइस का आप पेटेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड, तो कोई डिस्कवरी पेटेंट नहीं हो सकती कि अगर आप मुझे बोले पूजा एक डिस्कवरी मैंने की है जो आज तक किसी ने नहीं की, तो दैट डिस्कवरीज आर नॉट पेटेंटेबल, मिक्सचर्स आर नॉट पेटेंटेबल, एडमिक्सचर्स, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर पेटेंटेबल नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स पेटेंट है। मेडिकल के हो आप लोग तो नर्सरी में, नर्सिंग डिपार्टमेंट में, मेडिकल में सर्जरीज को पेटेंट नहीं कर सकते। ठीक है, कल को आप बोले सीजेरियन, मैंने एक नए तरीके से सीजेरियन करा है, जैसे आजकल देखा है मैंने कंसेप्ट फॉरेन में क्या चल रहा है कि पानी में वाटर ट्रीटमेंट से बेबी का बर्थ होता है ना, उससे पेन पेन कम होती है, लेबर पेन नहीं होते हैं, स्मूथ डिलीवरीज होती हैं। तो ये सब चीजें अगर आप बोले कि मुझे डिलीवरी मेथड सीजेरियंस टाइप चीजें मुझे पेटेंट करना है, तो पेटेंट ऑफिस कहता है सर्जरी इज नॉट अलाउड, डिवाइस को पेटेंट कर सकते हैं। आई वेंट टू गंगाराम, एंड गंगाराम में मैंने देखा कि एक डिवाइस, वहां पे एक फोटो लगी हुई थी मेटर्निटी मतलब उसमें डिपार्टमेंट में,
एक मॉम की फोटो लगी थी जिसमें एक डिवाइस उन्होंने लगा रखा था कि जैसे ही आपको लेबर पेन स्टार्ट होंगे वो डिवाइस आपको बता देगी, और डिवाइस आपको बता भी रही है कि कब आपके लेबर पेन शुरू होने वाले हैं, तो इंडिकेट करेगा कि आपके कितना टाइम लग गया है आपके बेबी के लिए। तो ऐसी डिवाइसेस को हम पेटेंट कर सकते हैं, सो सर्जरी इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट, प्लांट एनिमल को पेटेंट नहीं कर सकते। प्रेजेंटेशंस को जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आपको, दैट इज नॉट पेटेंटेबल। मेथड ऑफ प्लेइंग गेम इज नॉट पेटेंटेबल। ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब है कि जो दादी माँ के नुस्खे हैं, ठीक है, उनको हम पेटेंट नहीं कर सकते। अब आप मुझे बोलें कि पूजा बेसन से नहलाने से बच्चा गोरा हो जाता है, और वो बेसन से नहलाने का जो तरीका है वो मुझे पेटेंट करना है, दैट इज नॉट अलाउड। बट अगर आपने कोई लेप बनाया है, ठीक है, फॉर्मुलेशन बनाया है, ट्रेडिशनल नॉलेज में मैं बता रही हूँ, जैसे नीम और हल्दी इज ऑलरेडी नोन फॉर वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी, तो दैट इज नॉट पेटेंटेबल। बट अगर आपने एक फॉर्मुलेशन बनाया है जिससे आप ये बोल रहे हैं कि आपकी स्किन बहुत क्लियर हो जाती है, झाइयां चली जाती हैं, ठीक है, आपकी स्किन बहुत क्लियर हो जाती है, एक्ने दिक्कत नहीं रहती है, तो उस उपटन को हम पेटेंट कर सकते हैं। बट आपको उसको में सिनर्जिस्टिक रिजल्ट दिखाने होंगे। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मेटर्निटी के बाद, मतलब बेबी होने के बाद हम लोग जो लड्डू खाते हैं, है ना, लड्डू में क्या होता है, जो मम्मियाँ हमारे पंजीरी बनाती हैं, लड्डू बनाती हैं, तो उसमें क्या होता है, जनरली वो चीजें ऑलरेडी घर में अवेलेबल होती हैं हमारी किचन में। तो अगर आप ऐसी कोई न्यूट्रिशनल बिस्किट बना रहे हैं, न्यूट्रिशनल लड्डू बना रहे हैं, न्यूट्रिशनल यू कैन से एक पाउडर बना रहे हैं, तो उसका हम पेटेंट तो कर सकते हैं क्योंकि हम फॉर्मुलेशन का पेटेंट करेंगे। बट उसमें जो इंग्रेडिएंट है वो ऑलरेडी नोन है। आपका बेसन इज ऑलरेडी नोन, किशमिश इज ऑलरेडी नोन, खसखस एंड ऑल दिस थिंग। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिनर्जिस्टिक रिजल्ट, सिनर्जिस्टिक रिजल्ट का मतलब है उसमें जो खसखस डाल रहे हैं, गोंद डाल रहे हैं, बेसन डाल रहे हैं, काली मिर्च डाल रहे हैं, उन सबका जो इफेक्ट है ना बॉडी पे, वो बहुत ही अलग होता है। जैसे वो पंजीरी खाने से आपकी हड्डियां ठीक होती हैं, आपकी आयरन की डेफिशिएंसी कम होती है। इसीलिए हमारी जो मम्मियाँ हैं, हमारी जो मदर्स हैं, वो हमें वो खिलाती हैं ताकि आपकी वीकनेस है वो रिमूव हो जाए। तो अगर मैं इसका पेटेंट की बात करूँ तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के लिए हम पेटेंट कर सकते हैं, फॉर लैक्टेटिंग मदर्स, फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, फॉर मैटरनिटी मदर्स, ठीक है। तो ये, और फिर फॉर्मुलेशन में फिर आपको सारा इंग्रेडिएंट बताना होगा, उसका क्या इंग्रेडिएंट का कितनी क्वांटिटी आप यूज करें, उसका मेथड आपको बताना होगा कि कैसे वो आप बना रहे हो। नेक्स्ट, मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ यहाँ पे, कोई साइंस के दूसरे एग्जांपल से दे रही हूँ ताकि आप लोग थोड़ा कनेक्ट कर पाए कि मैंने जो बताया आपको, कि आपके दिमाग में भी अगर ऐसी चीजें कुछ है तो यू कैन कम अप विद द आइडियाज so that you can also have a patent and designs and copyrights on your new innovations. तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया बेबी हैंडलिंग डिवाइस। जैसे आपने देखा होगा लोग बेल्ट पहनते हैं, फॉरेन में कल्चर ज्यादा है क्योंकि वहां पे गोदी उठाने का टाइम नहीं है किसी के पास, और ना उनको गोदी उठाने का इतना वो है। तो आपने देखा होगा आजकल बेबी हैंडलिंग डिवाइसेस है जहाँ पे बच्चे को उसके अंदर डाल देते हैं, बेल्ट लगी होती है, वेरेबल डिवाइस होती है, पापा भी ले सकते हैं, मम्मी भी ले सकती है, और इन सब चीजों का भी हम पेटेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए, जैसे ये हैंडल करने के लिए बेबी को, ठीक है, पिलो पिलो हो गया, बेल्ट भी हो गई, ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स। नेक्स्ट, ये भी आपका है बैकपैक विद एक्सटेंडेबल फोल्डिंग क्रिब फॉर बेबीज। नेक्स्ट, ये बॉटल हो गई, नर्सिंग बॉटल विद नर्सिंग टाइम इंडिकेटिंग डिवाइस, ठीक है, इसका भी हम पेटेंट कर सकते हैं। आजकल देखा होगा आपने स्टील यूज करते थे, फिर कांच यूज करने लगे, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक यूज हो गई है बॉटल्स में। पहले आप उसे उबालते थे, प्लास्टिक को उबालने में पॉल्यूशन कॉज होता है, ठीक है, हेल्थ, बच्चे की हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लम है, तो आजकल स्टील बॉटल्स आ गए हैं। उसके अलावा स्टेरिलाइजिंग डिवाइसेस आ गए हैं जहाँ पे बॉटल्स आप रख दो वो स्टेरिलाइज कर देगा थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, तो थ्रू स्टीम। तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं, जो सारी टेक्नोलॉजीज हैं, इनको हम पेटेंट के लिए फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये देखिए ऑटोमेटेड आईवी पंप, ठीक है, ये आपका, ये भी आपका पेटेंटेड है। नेक्स्ट, 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 ये आपका पोर्टेबल मॉनिटर्स, ठीक है, जो आपको मॉनिटर कर रहा है आपकी सारी हेल्थ रिकॉर्ड्स को, आपका बीपी, आपका शुगर, आपका पल्स रेट, सब उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं, इनका हम पेटेंट कर सकते हैं इन डिवाइसेस का। नेक्स्ट, पोर्टेबल मॉनिटर्स इक्विपमेंट है जो नर्सिंग प्रोफेशनल्स के लिए यूज होते हैं, चेक द पेशेंट इवन दे आर ऑन द मूव और बिजी हेल्पिंग समवन एल्स। पोर्टेबल डिवाइसेस खुद से मॉनिटर करते रहते हैं उनके वाइटल्स को, ईसीजी, रेस्पिरेटरी रेट्स, ऑक्सीजन सिचुएशन, सैचुरेशन एक्सेट्रा, ठीक है, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हाईफाई जितने भी मैक्स वगैरह हैं सब लोग ये यूज करते हैं। उसमें अलर्ट सिस्टम भी रहता है, अलार्म सिस्टम भी रहता है नर्सेस के लिए कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी है पेशेंट को तो वो उसमें उनको पता चल जाए। नेक्स्ट, ये देखिए इंस्पायरिन, ओके, ये अगर डिवाइस है जो माउंट करते हैं वॉल ऑफ द पेशेंट रूम, और वो एआई के थ्रू वो सीरीज ऑफ सेंसर लगे होते हैं और पेशेंट को मॉनिटरी सेफली
मॉनिटर करते रहते हैं उनकी हेल्थ को, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है कुछ है तो तुरंत एक अलार्म सिस्टम ट्रिगर कर देंगे। नेक्स्ट, साथी पैड्स, ठीक है, अगेन इनोवेटिव इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिसमें पैड्स को हम बनाना फाइबर से यूज करें ना कि केमिकल से यूज करें, ठीक है। परचेज फ्रॉम द लोकल फार्मर्स एंड 100% बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि पैड्स के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है बायोडिग्रेडेबिलिटी की, और उसको इन्होंने मतलब इको फ्रेंडली अगर हम पैड बना रहे हैं तो उसको बायोडिग्रेडेबल करके तो हम उसका पेटेंट कर सकते हैं, तो ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, ये आपका एक स्टार क्लाइंबिंग व्हील चेयर है, स्टेयर क्लाइंबिंग व्हील चेयर है, ठीक है, जो आपको स्टेयर्स की क्लाइंबिंग लिए यूज करते हैं। जैसे अगर आपको फ्रैक्चर हो गया है या पोलियो है या कोई प्रॉब्लम है तो आप ऐसी व्हील चेयर्स का यूज कर सकते हैं। अगेन अ पेटेंटेड प्रोडक्ट, इसका पेटेंट और डिजाइन भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। जो साइकिल का डिजाइन है उसको डिजाइन में प्रोटेक्ट करेंगे और इसकी टेक्नोलॉजी को पेटेंट करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट आपका कंटेंट होता है, ठीक है। अब आपने कोई यूट्यूब की वीडियो बनाई, आप जैसे मतलब किसी कॉलेज ने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी बताने के लिए, जैसे सपोज कोई प्रोसेस समझाना है उनको, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने एक वीडियो बनाई थी और वीडियो के थ्रू वो समझाना चाह रहे थे ताकि जो गांव जो हॉस्पिटल्स में कई बार जो होते हैं बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं या महिलाएं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, ठीक है, अगर उनको जागरूक करना है तो आप वीडियो के थ्रू उनको समझा सकते हैं। तो ये सब चीजों के लिए आप कॉपीराइट फाइल कर सकते हैं, कंटेंट का कॉपीराइट कर सकते हैं, वीडियोस का कॉपीराइट कर सकते हैं, और कोई म्यूजिक वगैरह है तो उसका भी कॉपीराइट कर सकते हैं। रिसर्च वर्क जो भी आप लिखते हैं उनका भी हम कॉपीराइट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉपीराइट की ड्यूरेशन एज ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स रहती है, उसके बाद वो पब्लिक डोमेन, मतलब मरने के बाद भी आपके 60 साल के बाद भी आपको राइट्स मिलते रहते हैं। टाइप्स ऑफ वर्क एलिजिबल फॉर कॉपीराइट प्रोडक्शन क्या है? ऑडियो, कोई भी टीवी शोज, मूवीज हो गया, ऑनलाइन वीडियोस हो गया, साउंड रिकॉर्डिंग्स हो गया, रिटर्न वर्क हो गया, आर्टिस्टिक वर्क, वीडियो गेम्स, ड्रामेटिक वर्क, सब आपका कॉपीराइट में प्रोटेक्ट होता है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, डिजाइन में जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, जैसे बच्चे की बॉटल ले लो आप, इतनी सारी बॉटल्स हैं, ठीक है, इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए मार्केट में जो आप नए नए बॉटल्स लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो बॉटल के डिजाइन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी मेटर्निटी ब्रा, मेटर्निटी गाउन अगर आपने बनाया है तो उसका डिजाइन प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डिजाइन बेसिकली प्रोटेक्ट करता है उसकी शेप के, सरफेस को, पैटर्न को, लाइंस को, कलर्स को। कोई भी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट हो सकता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया वहां पे मॉनिटर्स, ठीक है, उनके डिजाइन को प्रोटेक्ट सकते हैं। कोई घड़ी हो सकती है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो सकता है। टेक्निकल फीचर को प्रोटेक्ट नहीं करता है, सिर्फ स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है, उसकी शेप को प्रोटेक्ट करता है। टाइम आपको 10 ईयर्स के लिए दिया जाता है, 10 ईयर्स के बाद इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये आप देखिए यहाँ पे हैंड फ्री क्रच और दूसरा सॉफ्ट कप, ठीक है, ये फीड करने के लिए बहुत ही इजी। एक एक मैम का ही एक डिजाइन था स्पून का, जो छोटे बच्चे होते हैं क्योंकि वो इजीली कई बार जो बॉटल भी अच्छे से फीड नहीं कर पाते है ना, तो हमने एक स्पून का हमने डिजाइन फाइल किया था कि जैसे ही आप उसे, जैसे कई बार होता है ना कि छोटे बच्चों को लोग चांदी की चम्मच से दूध पिलाते हैं कोई, तो उस डिजाइन को हमने इनोवेशन किया था ताकि बच्चे के ड्रूलिंग ना हो, मतलब दूध सीधा मुंह में ही जाए, इधर उधर ना गिरे। नेक्स्ट, यहाँ पे चेयर का डिजाइन हो गया, ठीक है, देखो डिफरेंट चेयर्स को भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम्पल। नेक्स्ट, बॉम्बे डाइंग की बेडशीट, मालाबार गोल्ड ज्वेलरीज, तनिष ज्वेलरीज, ये सब आपके डिजाइन में प्रोटेक्ट होते हैं। ये भी आपको राइट देता है ताकि दूसरे पर्सन को आप चुप कर सके, भैया आप मेरा डिजाइन नहीं चोरी करेंगे, ये मेरा डिजाइन है, मैंने इनोवेट किया, मैंने बनाया है, इसको मैंने प्रोटेक्ट भी किया हुआ है, और 10 ईयर्स के लिए आपके राइट्स आपके पास रहते हैं, उसके बाद आपको ये रिन्यूअल करना होता है। नेक्स्ट, जैसे कोई कार का डिजाइन हो गया है ना, कोई बॉटल का डिजाइन हो गया, मार्केट में आप कार खरीदने जाते हैं तो आपको कई बार होता है एसयूवी पसंद आ रही है, सिडान कार पसंद आ रही है, तो उनके डिजाइन भी प्रोटेक्ट होते हैं ताकि कोई और कार, कोई कॉम्पिटिटर उनकी कार के डिजाइन को चोरी ना करे। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ आईपीआर क्या है कि भाई जो भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आप लोग कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, जो भी न्यू इनोवेशंस क्रिएट हो रही हैं उनकी प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कोई और चोरी कर लेगा। इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, एवरीबडी, सबके लिए कहीं ना कहीं आईपीआर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो साइंटिस्ट है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो रिसर्चर है, टू इनकरेज देम दैट नीड टू चांस टू मेक फेयर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो इंपॉर्टेंस है कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आप उसे मार्केट में सेल आउट करो। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, आप देखो पहले जमाने में मेटर्निटी गाउन्स नहीं होते थे, ठीक है, कोई मेरे ख्याल से ऐसी नहीं होती थी, तो हम मार्केट में आप देखो गूगल पे इतने सारे आपको गाउन्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब जिसने वो आइडिया दिया, जिसके दिमाग में कोई आइडिया न्यू आया, उसने डिजाइन बनाया मेटर्निटी गाउन की फॉर्म में, और उसी को खुद से आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, अमेजोन पे प्रोडक्ट डाल सकते हो या फिर किसी कंपनी को सेल आउट कर सकते हो। नेक्स्ट,
इसके अलावा मैं कुछ और भी इसमें बता देती हूँ। ये तो क्योंकि नर्सिंग का था तो इसलिए मैंने थोड़ा लिमिटेड स्लाइड्स ली। नेक्स्ट स्लाइड करिए सर। हाँ, तो ये मेरा एक तो नंबर है, मेरा ईमेल आईडी है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं इसमें। और मैं एग्जांपल्स बताती हूँ। ट्रेड सीक्रेट होता है और जीआई होता है। ट्रेड सीक्रेट में कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे सपोज कोई भी एक रेसिपी है, जैसे रूह अफ़ज़ा, मैगी, ये सब ट्रेड सीक्रेट रहती है। इसमें आपको रेसिपीज का कोई फॉर्मुलेशन का पता नहीं चलता है, ठीक है। पेटेंट में क्या होता है, अल्टीमेटली आपको पता चल जाता है फॉर्मुलेशन क्या है। क्योंकि पेटेंट का जो प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है, पेटेंट आपने फाइल किया, पेटेंट पब्लिश होता है पेटेंट ऑफिस में, पब्लिकेशन होने के बाद एग्जामिन होता है, एग्जामिनेशन के बाद पेटेंट ऑफिस के ऑब्जेक्शंस आते हैं, आप उनके रिप्लाई फाइल करते हैं, फिर हियरिंग होती है, फिर आपका पेटेंट ग्रांट होता है। ये पूरा एक प्रोसेस होता है पेटेंट फाइलिंग से लेके ग्रांट तक, ठीक है। सेम डिजाइन में भी आपके पास डिजाइन। हाँ, तो डिजाइन में आपको, अगर आपके पास कोई डिजाइन है, आपको लगता है कि यस पूजा मैम मुझे ये रजिस्टर करना है, तो सिर्फ आपको डिजाइन मुझे देने, एक्चुअल डिजाइन दे सकते हैं। आपको जो पिक्चर्स देनी है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट साइड व्यू, ठीक है। और टेक्सटाइल की गारमेंट्स के केस में सिर्फ टॉप व्यू चलेगा, एक व्यू भी आप देंगे तो वो भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ओके। और अगर कॉपीराइट का कोई कंटेंट है, कॉपीराइट के लिए आपको मुझे रिसर्च पेपर देना होगा, रिसर्च पेपर अनपब्लिश होना चाहिए, कोई पब्लिशर से फिर एनओसी नहीं लेनी होगी। और अगर आपको लगता है कुछ वीडियोस है मैम हमने लोगों के लिए बनाई है, हॉस्पिटल्स के लिए बनाई है, लोगों को जागरूक अवेयरनेस के लिए बनाई है, तो उन वीडियोस का हम सिनेमाटोग्राफिक में कॉपीराइट प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इनकी फीस की बात कर रहे हैं। पेटेंट के जो चार्जेस होते हैं, गवर्नमेंट फीस के आपके जो टोटल होते हैं 12,500 है एक्सपेडाइट के, ठीक है। उसमें दो तीन फायदे हैं। देखो, अगर आप एक स्टार्टअप है, डीपीआईटी सर्टिफिकेट आपके पास है, तो सिर्फ आपको गवर्नमेंट फीस मुझे पे करनी है 12,500, दैट्स इट, टू फाइल योर पेटेंट टिल ग्रांट। सेकेंड एडवांटेज है, अगर आप एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं, आपके पास कोई कंपनी आप चला रहे हैं, एमएसएमई का सर्टिफिकेट है, तो आपको पूरे जो भी पैसे लगेंगे वो आपको पे करने हैं, बट आपको गवर्नमेंट 1 लाख रुपए तक का रिम्बर्समेंट प्रोवाइड करती है। तीसरा है आपके पास ऑप्शन कि आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो आप अपना सिंपल पेटेंट फाइल करिए, जिसमें इन्वेंटर एप्लीकेंट खुद भी हो सकते हैं। अगर आपको लगता है इंस्टीट्यूट के नाम से हमें फाइल करना, इंस्टीट्यूट फंडिंग करेगा, तो एप्लीकेंट में इंस्टीट्यूट रहेगा, इन्वेंटर में आप लोग रहेंगे। तो उससे पहले हम पहले आपको एक इन्वेंशन डिस्क्लोजर फॉर्म शेयर करते हैं, आप वो मुझे भर के भेजते हैं, हम उसकी नॉवेल्टी चेक करते हैं कि वो रिपोर्ट, वो आइडिया पेटेंटेबल है कि नहीं, उसके बेसिस पे फिर हम आपको एडवाइस करते हैं। आपका पेटेंट फाइल होता है 10 से 15 दिन के अंदर, पेटेंट फाइल होकर रिसिप्ट आपको दे देते हैं, एप्लीकेशन नंबर, आप आईपीओ की साइट पे जाके अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। 1 महीने में पेटेंट पब्लिश हो जाता है, फिर आप एग्जामिनेशन फाइल कीजिए और 1 साल में पेटेंट आपका ग्रांट हो जाएगा, अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट है और एक्सपायर्ड पेटेंट के लिए जाते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि अगर आप एक्सपायर्ड करवाते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, स्टार्टअप है, एमएसएमई है और एक लड़की का नाम उसमें ऐड है, तो 1 साल में आपको पेटेंट मिल सकता है। तो ये सारी सुविधाएं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। तो अगर आपके पास कुछ आइडियाज है तो यू कैन डिस्कस, या कोई क्वेश्चन आंसर्स है यू कैन डिस्कस। थैंक यू। हेलो पैनम, कैसे है? देखो नहीं सुनाई दिया उसको। यस सर, यस सर। पूजा मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही है दीप्ति मैम, आ रही है। अच्छा ठीक है। आई कैन फील बाय योर वॉइस दैट यू आर नॉट वेल। थैंक यू अच्छा, सो मच। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। थैंक यू। ओके। ये कब से ऐड हो गया कि एक लड़की का नाम देने से पेटेंसी जल्दी मिल रही है? नहीं आई आवाज उसको। पूछो मेरा क्वेश्चन शशांक। अभी अभी एक्सपायर्ड हुआ है मैम ये। उसका। अगर आप लड़की का नाम डालेंगे अपने एप्लीकेंट में, हाँ हाँ। ठीक है, तो जल्दी पेटेंट ऑफिस वाले ग्रांट कर रहे हैं। उसका राइटअप भेजो फिर हमको। पर उसमें फिर फॉर्म 18 नहीं, 18A फाइल करेंगे, एक्सपायर्ड पेटेंट। ओके ओके, चलो चलो। दीप्ति मैम, जो हाँ आपके नॉर्मल पेटेंट भी अगर है हाँ हाँ। और अगर मुझे एक्सपेडाइट में कन्वर्ट करते हैं, तो बस आपको फिर एक्स्ट्रा 4,000 गवर्नमेंट फीस एक्स्ट्रा देनी होगी, कि नॉर्मल से कन्वर्ट करने में लिए 8,000 फीस है एग्जामिनेशन की। उसको बोलो फिर मैं बाद में, मेरे को फॉर्म भेजेगी तो मैं बाद में देखती हूँ। तो थैंक यू बोल दो तो ठीक है। ये हाँ बोलिए। हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर ऑडियंस में किसी का कोई क्वेरी है, पूछ सकते हैं आप लोग। Audience, any query?
नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आपको जल्दी से कहीं मिलेगा नहीं, समझ में भी नहीं आएगा जितने शॉर्ट एंड सटीक वे में मैम ने आपको बताया है. क्योंकि आगे नैक में जाना है, एनआरएफ में जाना है, या अपनी खुद की सीवी आपको करना है इनहांस, तो आजकल पेटेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है. Okay, कितने हर लोगों को कॉलेज, पता- हर यूनिवर्सिटी में मैं काम करती हूँ, और मेडिकल कॉलेजेस में भी सब लोगों को चाहिए कि हमारे नाम पे पेटेंट डिजाइन कुछ फाइल हो जाए. तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है. दीप्ति मैम के खुद के बहुत अच्छे इनोवेटर हैं, जितने इनके सारे डिजाइन और पेटेंट फाइल है. तो आप घबराइए मत कि मेरा आइडिया पता नहीं फ्लॉप ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, पर अगर आपको लगता है कुछ है तो यू कैन डिस्कस विद दीप्ति मैम. ठीक है. अच्छा, कितने चलिए, लोगों को ठीक है. पता था Thank इसके you. पहले व्हाट इज पेटेंट? ऑडियंस साइड, पेटेंट पता चला कि होता क्या है? अभी मैम ने आपका सीवी पढ़ा था, कुछ आप लोगों ने सुना होगा कुछ देर पहले. सो मैम के बहुत सारे पेटेंट थे. कितने थे, कितने लोग बताएंगे? अच्छा, कितने लोगों ने सुना था? एटलीस्ट प्रिंसिपल मैम की सीवी के बारे में तुम लोगों ने नहीं सुना? पेटेंट से सुनी थी मैम की कितनी है? हाउ मैनी? 45 कौन बोला? मुझे लगता है मैं टोटल अभी तक 5000 पेटेंट फाइल कर चुकी हूँ. 5000. So no question? Okay. Thank you so much ma'am for wonderful session. So I want to conclude the topic. Ma'am has explained first of all what is the innovator. Do you know innovator? कौन होता है? सब ऐसे. And ma'am has explained very well what is patent, what is the intellectual rights. Okay, ma'am has explained how many types of intellectual property, like first of all patent, copyright, industrial design, layout design, trade sector and trademarks. So thank you so much ma'am for wonderful session. Thank you so much. Thank you. जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा, उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज, आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है, किस्मत
सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित 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 सबसे अनल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित I dream of night, I dream of day, I dream of watching you fade away. Feel me once, feel me twice, feel me more, I'll shoot you aside. One thing you die. तो बच गया dum da da dum dum da da dum dum da da dum नाचे मौत dum da da dum dum da da dum dum da da dum da dum dum नाच नाच सारी रात क्या पता मैं कल दूंगा पीट पीट ढोल पीट हाथ पाँव मार ठेठ नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच रात सारी मौत का हूँ मैं मदारी बाज डमरू सी कटारी डम 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 नाच मौत का रक्त चरित रक्त चरित मेरा को मरेगा जाग जाग भाग भाग मेरा को मरेगा मौत की पीछे पे साथ मेरा को मरेगा Thank you, students. And this performance was by paramedical students of SINPS. Can we have our next performers on the stage, please, for the Haryanvi song? मेरी माँ ने टोया जमाई से न्यारा लखा में कि मैं तो खासल कोहरिया वो बैरी आँखा में धोली गहती में वो काला डोरा न्यारा पड़ गया धोली गहती में वो काला डोरा न्यारा पड़ गया हो गई हाल सर पे तो घड़ रे पानी छल के हो गई हाल सर पे तो घड़ रे पानी छल के कोई भी मौका छोड़ू ना जाऊं बैठ उसकी जड़ में उसके आने रौनक रहती कसम सारे बगड़ में कोई भी मौका छोड़ू ना जाऊं बैठ उसकी जड़ में मेरा जड़ जाल हो सारा जब लिकड़ा टल गया मेरा जड़ जाल हो सारा जब लिकड़ा टल गया हो गई हाल सर पे तो घड़ रे पानी छल के हो गई हाल सर पे तो घड़ रे पानी छल के नवीन विष्णु ने दे राखी घनी ढील पपोसे में राम की सुआवे कसुती फिल पपोसे में नवीन विष्णु ने दे राखी
बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है कोसा है कोसा है बारिशों का बोसा है मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है कोसा है कोसा है बारिशों का बोसा है जल 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 थल जल थल चल 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 बहता चल नन्नारे 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 बरसो रे मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो गिली 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 हाँ हा 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 गिली गिली माटी के चल घरौंदे बनाएंगे रे हरी भरी अम्बी अम्बी की डाली मिलके झूले झूलाएंगे रे हो धन बैजू गजने हल जोते सबने बैलों की घंटी बजी और ताल लगे भरने रे तैर के चली मैं तो पार चली रे तैर के चली मैं तो पार चली पार वाले परले किनार चली रे मेघा नन्नारे 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 Thank you so much, students. Are we ready for the last performance of the evening? Are all the participants ready? I invite all the participants on the stage. धना 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 रे 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 धना मेरो नाम झूमे पहाड़ों की बांध जादू देखी मेरी माया का सबे परेशान धना मेरो नाम झूमे पहाड़ों की बांध जादू देखी मेरी माया का सबे परेशान कासे की थाई माबल चांद को सिक्का मैं तेरी रानी तू मेरे हुकुम को इक्का हवल हुकुम को इक्का ना हेरो ना धेरो ना नैनीताल की नीरो अरे भले छुमे और मेरी गागेरी को घेरो ना हेरो ना धेरो ना नैनीताल की नीरो अरे भले छुमे और मेरी गागेरी को घेरो ओ धना मेरो ना धना मेरो ना
पाटेकी नो घगरी नो पाटेकी नो घगरी नो पाटेकी नो घगरी नो बार पैरों में पैरी पैर फैशन करूं इतके उतके फिरूं मैं नो पाटेकी नो घगरी नो बार पैरों में पैर पैर फैशन करूं इतके उतके फिरूं मैं वो धना मेरो नाम धना मेरो नाम धना मेरो नाम जो मैं पहाड़ों की बांध जादू देखी मेरी माया का सबे परेशान धना मेरो नाम जो मैं पहाड़ों की बांध जादू देखी मेरी माया का सबे परेशान So with this, we'll wrap up the day 2 of our international conference. And I invite you all for the high tea at your designated venues. You may have your high teas outside this auditorium, please. Thank you and have a good evening, everyone. We will meet tomorrow for our day 3 of international conference. See you tomorrow. नायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. Thank you, everyone.